Hello friend, today we discuss with chronic kidney disease and chronic kidney disease here chronic means when any kidney injury or kidney damage occur more than 3 months, we just tell about that chronic kidney disease. So chronic kidney disease or previously known as a chronic kidney injury, CKI also. So we just tell about that when it is more than equal to 3 months, known as a chronic kidney. So any kidney damage more than 3 months, okay, in which either it is a structural or functional abnormality, abnormality with or without decreased GFR. सो GFR का स्पेशली अब इसमें कोई ऐसा कोई खास रोल नहीं, अगर स्ट्रक्चरल फंक्शनल एब्नॉर्मेलिटी है, ठीक है, ऑन बायोकेमिकल टेस्ट और या फिर कोई रेडियोलॉजिकल, दैट इज अ रेडियोलॉजिकल कह सकते हैं, दैट मींस इमेजिंग, ऑन इमेजिंग अगर जो है स्ट्रक्चरल कोई एब्नॉर्मेलिटी आती है एंड उसके कारण से, ठीक है, उसके कारण से भी, और वो मोर देन 3 मंथ है, तो वी जस्ट टेल अबाउट दैट पेशेंट हैव CKD, chronic kidney disease. And another is say GFR. When eGFR is decreased less than 60 ml, when eGFR decrease less than 60 ml per minute per 1.73 meters square. That's an important duty, but this less than 60 ml per minute per 1.73 meters square with or without kidney damage. This is also very important. With or without kidney damage. So when GFR is intact, and if you see the structural or functional abnormality on biochemical or imaging test, and which is persisting more than 3 months, we just tell about the patient of CKD. And so also when this eGFR is decreased less than 60 ml per minute per 1.73 meters square, with or without, that's either kidney damage occurring or not. We also just tell about the patient at CKD. So this is the definition, basically. This is the definition of CKD. Now we just tell about the etiology of CKD. What are the cause? So causes of CKD, there is various cause of CKD, or many causes can lead to CKD, chronic kidney disease, but we just concern about some important cause. So the important cause is about diabetes. So what are the, so just before that we just go for etiology of CKD. So we just tell what are the etiology, what are the causes. Just causes is especially diabetes. So diabetes is a major or more important and mainly cause chronic kidney disease, known as a diabetic nephropathy. डायबिटिक नेफ्रोपैथी पे हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे, बट बिफोर दैट लेक्चर वी जस्ट टेल अबाउट व्हाट आर द डायबिटिक, हाउ वी कैन से दैट पेशेंट हैव डायबिटिक नेफ्रोपैथी. सो स्पेशली द हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज अबाउट टू 5 to 10 years and more than 10 years, and patient have more than 500 milligram per day or 24 hours. ठीक है, so more than 500 milligram protein loss, especially albumin loss. ठीक है, you just tell that when the urinary albumin loss or protein loss is more than 500 milligram per 24 hour, we just tell the patient that, and patient have history of diabetes for 5 to 10 years, more than 10 years, we just tell the patient have diabetic nephropathy. ठीक है, सो इस पे अलग से एक लेक्चर, इसके अलग से स्टेजिंग है, तो उसको हम अलग से डील करेंगे. नेक्स्ट जो इकोलॉजिकल फैक्टर है वो है हमारा
क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि किसी भी कारण से अगर जो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मींस ग्लोमेरुलस का अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कोई भी कॉज हो सकता है, क्रॉनिक और वो परसिस्ट कर रहा है मोर देन 3 मंथ, it also lead to the chronic kidney disease. Next is a hypertension. So hypertensive, that's important, also important, hypertensive nephrosclerosis leads to this chronic kidney disease, nephrosclerosis. So this is also very important. And next most common cause is a autosomal, that's a autosomal dominant polycystic kidney disease, also a etiological factor. And one more thing is about obstructive uropathy. So this is also important. And we just tell about the CKD or अनआइडेंटिफाइड इटियोलॉजी, अनआइडेंटिफाइड जिसका भी पता ही नहीं है कुछ भी, और किसी कारण से भी अगर स्ट्रक्चरल फंक्शन एब्नॉर्मलिटी आ रही है जो परसिस्ट कर रही है मोर देन 3 मंथ, या फिर जीएफआर डाउन जा रहा है लेस देन 60 मोर देन 3 मंथ से, ठीक है, वी जस्ट कॉल एज सीकेडी ऑफ अनआइडेंटिफाइड इटियोलॉजी. So this is all about the etiology of CKD. So major cause of CKD especially is diabetes. So if diabetes, uncontrolled hyperglycemia, which is about more than 10 years, or persistent uncontrolled hyperglycemia can lead to the chronic kidney disease. And also known as the diabetic nephropathy. और इस पे हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे. और प्रोटीन लॉस, यूरिन प्रोटीन लॉस, दैट्स स्पेशली यूरिन एल्बुमिन अगर मोर देन 500 मिलीग्राम पर डे है, नहीं 24 आवर में अगर 500 से ज्यादा अगर प्रोटीन लॉस हो रहा है, मिलीग्राम से ज्यादा लॉस हो रहा है, we just tell about the patient of diabetic nephropathy. And now we just say the chronic glomerulonephritis, किसी भी कारण से अगर chronic glomerulonephritis है तो also effect of the CKD leads to CKD. Obstructive uropathy and autosomal dominant polycystic kidney disease and hypertension, they all are the major etiological factor of CKD. Now we just tell what are the staging, ठीक है, what are the staging of CKD. So staging of CKD is basically depend on the EGFR and urinary albumin or protein loss. So staging of CKD is depend on the EGFR and also depend on the urine albumin loss. So staging of CKD. So staging के लिए तो हम जो है बुक में स्टेजिंग को अच्छे से समझ सकते हैं. स्टेजिंग का पूरा चार्ट बना हुआ है. स्टेजिंग के चार्ट को हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम इसे क्लियरली ये समझ लेते हैं कि अगर हम CKD देखें यानी कि मोर देन 3 मंथ से ज्यादा अगर जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी मोर देन 3 मंथ से ज्यादा अगर GFR घटा हुआ है या फिर GFR इंटैक्ट है लेकिन स्ट्रक्चरल या फंक्शन एब्नॉर्मलिटी है, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो वहां पे हम कह सकते हैं कि पेशेंट ठीक, तो जरूरी नहीं है कि मतलब GFR घटाओ, या अगर पेशेंट कोई भी है उसको अगर 3 मंथ से ज्यादा जो है कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी है, फंक्शनल अगर एब्नॉर्मलिटी है अगर, and we also can say that if any patient have urine protein loss or urine albumin loss which is +1 also, ठीक है, +1 not +2 +3, if urine protein loss is +1, we are also telling that the patient of CKD on the basis of structural or functional abnormality. And so staging especially on the basis of KDIGO. So this is KDIGO classify the CKD into 5 stages. So 1, 2, 3 and 4 and 5. So this especially the stage 1 when the GFR is more than 90 ml per minute, and ये तो सब हम जानते ही हैं. Stage 2 is when GFR is 60 to 89, when GFR is a 3, especially 3A 3B, but we just tell all about 3 है. तो अगर हम पूरा 3 मान के चले तो इसमें हमारा जो है ये हो जाएगा 30 का डिफरेंस आ जाएगा. दैट्स मीन्स ये 59 to this 30, or we just say that this is very important. And less than 13, that is less than 30 means 29 to 15, okay? We just call say that stage 4, and less than 15 ml per minute, okay? We just say that this stage 5. Stage 5 is known as end stage renal disease.
एंड स्टेज रीनल डिजीज, स्टेज 5, स्टेज 4 एंड स्टेज 3। सो हमने अपनी डेफिनेशन में ये बोला था कि EGFR, अगर EGFR 60 से कम है, ठीक है, और मोर देन 3 मंथ, तो हम इसको क्या कहेंगे कि पेशेंट है CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो यहाँ जो स्टेज 3 है, यहाँ से स्पेशली इसको हम कह सकते हैं, इफ एनी पेशेंट गोइंग टू द स्टेज 3, ठीक है, लेस देन 60 ml पर मिनट EGFR और परसिस्टिंग मोर देन 3 मंथ से ज्यादा अगर हो गया, उसको GFR 60 से कम है, देन पेशेंट इज क्लिनिकली, और कह सकते हैं कि फिर हम कह सकते हैं पेशेंट है CKD, ठीक है। सो now this is the, and also this classification is especially the EG on the basis of EGFR is calculated by the Cockcroft-Gault formula। तो अब हम ये देख लेते हैं कि Cockcroft-Gault formula, ये Cockcroft-Gault formula क्या है? Cockcroft-Gault formula स्पेशली कहता है कि EGFR 140 माइनस एज अपॉन 72 इंटू सीरम क्रिएटिनिन, ठीक है। तो अगर जैसे कि अगर मेल है तो हम इसको इस तरह से EGFR निकाल सकते हैं, ठीक है, EGFR। और अगर क्या कहते हैं यही फीमेल है, ठीक है, दिस इज फॉर मेल, ठीक है, फॉर मेल, एंड फॉर फीमेल अगर है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 का, तो हमें EGFR मिल जाएगा फीमेल का। तो Cockcroft-Gault फॉर्मूला से EGFR निकालेंगे। EGFR निकालने के बाद हम उसकी स्टेजिंग बनाएंगे कि ये स्टेजिंग आ रही है CKD की। इसके बाद में अब हमारा जो दूसरा जो स्टेजिंग जो KDIG जो ये कहता है कि एक EGFR के बेस पे स्टेज 5 में डिवाइड किया, प्रोटीन लॉस जो होता है USCR, यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, ठीक है, उसके बेस पे भी हम जो है इसको मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं। तो स्पेशली उसके बेस पे KDIGO जो है वो कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो उसके बेस पे यानी कि यूरिन एल्बुमिन यानी ACR के बेस पे, UACR, इसके बेस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो 3 स्टेज हैं, स्टेज A1, स्टेज A2 एंड स्टेज A3, ठीक है। तो लेस देन 30 मिलीग्राम पर ग्राम अगर प्रोटीन लॉस हो रहा है यूरिन में, ठीक है, और अगर 30 to 300 मिलीग्राम पर ग्राम अगर प्रोटीन लॉस हो रहा है, स्टेज 2 हो जाएगी। और अगर मोर देन 300 मिलीग्राम जो है पर ग्राम प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेज 3 हो जाएगी। तो UACR when 30 less than 30 स्टेज 1, ठीक है, एंड मोर देन 30 to 300 is stage 2, and when UACR is more than 300 milligram per gram, this is stage 3, CKD stage 1, 2, 3, and this is all about the +1, this is all about the +2, and this is all about the +3, ठीक है। So now we just go for the what are the vaccination schedule? Now we just go for the vaccination schedule for the patient of CKD, ठीक है। So some vaccine which is recommended in a patient of CKD, we just go through the vaccination, recommended vaccination needed for the CKD. So vaccination, especially which vaccine necessary for the CKD patient. So here the vaccination schedule in a patient of CKD. So some vaccine are necessary patient of CKD. So क्या क्या vaccine, especially hepatitis B, hepatitis A, and influenza vaccine, influenza, and one more is about to say that pneumococcal vaccine. So pneumococcal infection is much more common in patient of CKD, hepatitis infection, influenza vaccine, they all are common in patient of CKD. So pneumococcal vaccine, influenza vaccine, hepatitis B vaccine in some patient, टिटनस डिप्थीरिया एंड टिटनस की वैक्सीन लगती है, कुछ पेशेंट्स में herpes zoster की वैक्सीन लगती है। तो हम जो बेसिकली जो पढ़ेंगे वो हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोकोकल, 3 की वैक्सीन के बारे में भी हम इसमें देख लेते हैं। तो स्पेशली जो है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है व्हेन अब इसमें जो सीकेडी की स्टेज के बेस पे हेपेटाइटिस की बी की डोज है, ठीक है। तो क्या डोज है, स्पेशली अगर सीकेडी स्टेज 3 या 4 में है, ठीक है, पेशेंट स्टेज 3 या स्टेज 4 में, यानी कि लेस देन 60 से अगर स्टार्ट कर रहा,
स्टेज 3 में तो 20 माइक्रोग्राम आपको जो है वो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन आती है वो आपको 20 माइक्रोग्राम देनी है, और वो देनी है 0, 1, 2 एंड 6 पे, 0, 1, 2 एंड 6। एंड अगर यही जो हेपेटाइटिस बी जो है उसकी वैक्सीन आपको देनी है 40 माइक्रोग्राम, 40, ये आपको क्या देना, ये आपको देना 40 माइक्रोग्राम, ठीक है। और शेड्यूल हुए रहेगा 0, 1, 2 एंड 6। ये आपको देना है जब एंड स्टेज रीनल डिजीज हो, स्टेज 5 में 40 माइक्रोग्राम, 0, 1, 2 एंड 6। और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो होगी वो सीजन शुरू होने से 2 महीने पहले, आप सीजन शुरू होने से 1-2 महीने मतलब 1-2 मंथ प्रायर जो है एवरी ईयर आप इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन दे दो, इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दे दो। इसके अलावा जो है निमोकोकल वैक्सीन जो है वो 2 तरह से आती है, PPR13 आती है और PPR23 आती है। तो अगर एज जो है वो सीकेडी वाला जो पेशेंट है उसकी एज अगर जो है वो 19 से 65 ईयर के बीच में है, तो हम क्या करेंगे कि PPR13 जो है वो 0.5 ml ये देंगे, और PPR13 0.5 ml देने के बाद इसके 8 वीक बाद, 8 वीक का मतलब हो गया 2 मंथ के बाद PPR, इसको नीचे नहीं समझा रहा हूं, PPR23 देंगे, ठीक है, वो 0.5 ml ये दे देंगे। इसके साथ में अगर आप देखेंगे अगर एज अगर जो है वो 65 यानी कि एज अगर है पेशेंट की, सीकेडी का पेशेंट है और एज 65 से ज्यादा है, 65 ईयर से ज्यादा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पे हम बेसिकली 0.5 ml ही देंगे, PPR23 देंगे, ठीक है, 13 नहीं देंगे, PPR23 देंगे 0.5 ml, और इसके 5 साल बाद 5 ईयर आफ्टर जो है वो हम फिर 0.5 ml जो है वही PPR23 देंगे, यानी कि टू वैक्सीन शेड्यूल, 2 डोज शेड्यूल हो गया इसका भी आपका 2 डोज शेड्यूल है। लेकिन ये 19 टू 65 ईयर यानी 19 से 65 साल के बीच में PPR13 देना है 0.5, उसके 2 महीने बाद यानी 8 वीक बाद PPR23 देना है जो कि 0.5 ml, यानी कि वैक्सीनेशन शेड्यूल इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द पेशेंट ऑफ सीकेडी, क्योंकि सीकेडी के पेशेंट में न्यूमोकोकल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी सी इन्फेक्शन, दिस इज वेरी वेरी कॉमन इन पेशेंट ऑफ सीकेडी। सो वी जस्ट save the CKD patient by giving the vaccine, especially hepatitis B, influenza, pneumococcal, and some patient have diabetic. This is especially happy zoster vaccine. So this is the vaccination schedule. Okay. So vaccination schedule is also very very important. And now we just go for the मैनेजमेंट। पर बिफोर मैनेजमेंट से पहले हम ये देखते हैं कि जो GFR है नॉर्मली भी अगर हम देखेंगे सीकेडी को, अगर हम अभी फॉरवर्ड करें और सीकेडी को छोड़ के अगर देखें तो GFR नॉर्मली भी घटता है, पर कितना घटता है उसका रेट देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉर्मली जो GFR होता है, नॉर्मल जैसे नॉर्मली कोई भी पर्सन ऐसे मतलब हम हैं या फिर कोई भी है, मतलब नॉर्मली तो नॉर्मल जो पेशेंट्स हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, नो डायबिटीज, नो हाइपरटेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनमें भी GFR जो होता है वो घटता है। तो कितना घटता है, तो नॉर्मल पेशेंट जो होता है उसमें eGFR जो होता है वो आपका 0.7 ml पर मिनट पर ईयर घटता रहता है, ठीक है। नॉर्मली ये दिस इज नॉर्मल फॉर नॉर्मल पेशेंट, ठीक है। नॉर्मली कोई भी इंडिविजुअल है, नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, नॉर्मल इंडिविजुअल जो है उसमें भी GFR जो है वो एज के साथ घटता है 0.75 और 0.7 ml और 0.75 ml पर मिनट। लेकिन अगर यही पेशेंट अगर सीकेडी का है, ठीक है, तो वहां पर आप अब सीकेडी अब कह सकते हैं कि अगर पेशेंट जो सीकेडी का है, ठीक है, तो वहां पे भी जो ये जो GFR है वो घटेगा। तो जो GFR जो घटता है वो बेसिकली अगर पेशेंट है डायबिटीज, ठीक है, पेशेंट है डायबिटीज, अगर उसको अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया है, डायबिटीज है, तो ये जो GFR घट रहा है, ये GFR का जो रेट होगा उस पे नॉर्मली 0.75 ml पर ईयर जो है वो घटेगा आपका जो GFR नॉर्मल इंडिविजुअल में। लेकिन डायबिटिक पेशेंट है तो वहां पर क्या होगा, ये 0.9 ml पर मिनट पर ईयर जो है वो GFR घटेगा, ठीक है। और यहीं पे पेशेंट को अगर मान के चलिए डायबिटीज के साथ में हाइपरटेंशन भी है, लो दो प्रॉब्लम हो गई एक साथ, डायबिटीज भी हो गई, हाइपरटेंशन भी दोनों हो गया, तो डायबिटीज हाइपरटेंशन दोनों है, तो वहां पर GFR 3.2 ml पर मिनट पर ईयर घटेगा,
यानी कि फिर तो और तेज गति से जीएफआर जो है और फास्टली जीएफआर डाउन हो रहा है। अगर पेशेंट को इसके साथ में डायबिटीज नहीं है, बस केवल अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, ओनली अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, डायबिटीज नहीं है, तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, ठीक है, नो डायबिटीज, डायबिटीज नहीं है, तो वहां पर जीएफआर को 2.4 ml पर मिनट पर ईयर घटेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये ईजीएफआर है, ये इतनी रेट से घटेगा, यहाँ पे भी ईजीएफआर है वो कितनी रेट से डाउन होगा, यहाँ पे ईजीएफआर है कितनी रेट से डाउन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली पेशेंट पे 0.75 ml पर मिनट के पर ईयर जो है वो आपका जो जीएफआर जो है वो डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल इंडिविजुअल में। लेकिन पेशेंट को डायबिटीज है तो उसका जो जीएफआर है वो आपका 0.9 ml पर मिनट जो है पर ईयर डिक्रीज होगा। पेशेंट को डायबिटीज के साथ हाइपरटेंशन की तो 3.2 ml पर मिनट पर ईयर डिक्रीज होगा। और अगर पेशेंट को डायबिटीज नहीं है, केवल हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, तो वहां पे भी जीएफआर 2.4 ml पर मिनट पर ईयर के हिसाब से डाउन होगा। अब हम बेसिकली इसका मैनेजमेंट देखेंगे एंड मैनेजमेंट के लिए, और हाँ ये दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे पता करेंगे, तो अर्ली डिटेक्शन, ठीक है, के लिए कि पेशेंट जो है वो सीकेडी में ना चला जाए, तो उसके डिटेक्शन के लिए हमारे पास में सिस्टेटिन सी, सीरम सिस्ट सी बाय क्रिएटिनिन रेशियो से देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, और यूएसीआर है। तो ये जो बेसिकली क्या है, ये जो दो टेस्ट हैं इनसे हम जो है अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं पेशेंट का कि जो है ये आपका आगे जाकर के क्रॉनिक किडनी डिजीज होगी नहीं होगी। तो अभी हम जो है फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसमें आगे जाएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो मैनेजमेंट ऑफ सीकेडी एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सीकेडी, ठीक है। सो मैनेजमेंट एंड सीकेडी विल डिस्कस in our next video, and thank you for seeing this, and thank you for subscribing my channel. Thank you so much.